You are watching खबर फेस टू फेस। स्वागत है आपका, खुश है आज हम सभी है साथ आपका, शुभ दिन है आज का, स्वागत है आपका, खुश है आज हम सभी है साथ आपका। स्वागत है आपका, खुश है आज हम सभी है साथ आपका, शुभ दिन है आज का, स्वागत है आपका, खुश है आज हम सभी है साथ आपका। बनी है तो क्या करें, लगा के चार लगा के बोला Focus. For this tournament, we would like to call Keeper Sir come on the dice. Okay, thank you so much. I won't use this speaker, this mic. मैं ऐसा ही बोलना चाहूँगा। ओके, तो वोट लेने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने सारे स्टूडेंट्स आए हैं और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ड्यू टू सम एग्जाम्स इन दी स्कूल वो लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उन लोगों को अलाउ किया था कि वो लोग आ सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रीलिम्स एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, स्टिल स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज द बिग थिंग। ओके, मैं यहाँ पर आया हूँ एक ओथ लेने के लिए। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द इवेंट वी टेक द ओथ। Okay, so I would request all the students to stand, those who are participating. Okay, all the students. Okay, all the students who are participating. We will take the oath first, and then we will proceed with the program. Okay. Okay, so everybody will keep their right hand on their chest, like this. Okay, right hand on their chest. अच्छा, ये इसीलिए लिया जाता है। ओके, मैं POC से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी खड़े हो जाए और वो भी ये होते हैं। ओके, ऑल ऑन। ओके। ओके, द रीजन बिहाइंड POC को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में ना POC लोग भी थोड़े से ओके, बट POCs आर वेरी गुड। ओके, दे एवरी टाइम दे सपोर्ट अस। ओके, सो एवरीबडी विल टेक द ओथ। ओके, सो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। ओके, फाइन। इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स टेकिंग पार्ट इन द जोश सीरीज 4.0, I promise that we will compete with honor and respect. In the spirit of true sports, we will abide by the rules of the games and recognize the commitment of the tireless volunteers who make this experience possible. Thank you so much. Okay. धीरे बड़ा हो रहा है। ठीक है, सो इस टाइम हम लोग ने कुछ को स्पॉन्सर्स लोगों को भी इनवाइट किया था और यहाँ पर हमारे पास कुछ को स्पॉन्सर्स भी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उनको फेलिसिटेट करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट फरीद सर एंड शाइन मैम टू कम ऑन द डायस एंड फेलिसिटेट द को स्पॉन्सर्स। He was standing beside me and I was busy looking here and there and I didn't recognize him because I was very surprised looking at him. So he came 5 minutes early. So then he called me. Then I saw and I was very surprised. Okay, so I would like to call and felicitate that person first. Okay, who came here at 7:10 instead of calling him at 7:15. Okay, when I asked him, he said कि punctuality बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे लाइन में जो पंक्चुअल रहेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर एंड ही इज द ओनर ऑफ MGS कंप्यूटर क्लासेस। ओके, एंड ही इज Sarawar Ansari sir. Okay, he is running his classes from last 14 years in MADA.
Okay, and he has a lot of experience in computer field, in technology field. So I would request Saravar sir to come front. Okay, please clap loudly. Okay, keep clapping. Our co-sponsor from MGS Computer Classes. Coordinator of the entire Maladwala part, and it is Raj Computer Academy, and the sir who is here from who takes care of the entire Raj Academy is Roshan Zamir Shah sir. Okay, so he is here, and thank you so much for giving your time, sir. Keep clapping. Okay, because of them you all are playing today. Okay, they are the co-sponsors who are sponsoring something. He is very polite, he talks very nicely, okay, and he is Manish Kumar sir from PS classes, okay. Thank you so much sir for coming here. He runs the classes in Wada, okay, in Sabli building. Thank you so much. Now it's a time to request you, sir, to share your inspiring words. So good morning once again. Can it be louder? Good morning. Good morning, Very, very happy and excited to have you all here today. This is the 4th year of Josh, and the basic idea of having this Josh series is to create a platform where all Malbani and otherwise, apart from Malbani area, all the students should get a chance to show their talent in sports. And year after year we are growing. It's just because all the schools take participation in this, and I'm very happy and very proud that in Malbani and around, among the schools, there is no competition but there is a collaboration. So even if the program is organized by Gurukul, but all the schools take part, there is no question of any competition or any ego as such among the school principal. We all are united, we work together for the betterment of our area. And Josh is one of such examples. So I would like to also thank all the principals of various schools who had allowed their children to participate. The basic fundamental why all the school trust on us is because we have a policy of to be just and fair. So for the last 3 years, we are religiously maintaining this. So any competition, whether it is chess, carom, cricket or football or any other competition that we organize, we ensure that there is a fair play. So there is no question of any cheating or any biasness, and people have experienced that, and I am very proud of my team that they have maintained this policy thoroughly, and in the last 3 years we have not had any single argument on the ground. All the POCs will also acknowledge this, that whenever you come participate, there is no chance of any objection. We also call the referees from outside. We have some referees coming in today. They are not part of Gurukul, they are not our coaches, but we have called them separately only for today's program so that we will have a fair play. So I assure all the participants that do your best and let the best win. Okay? And also I would like to proudly announce that being the 4th year, as Clifford sir mentioned, we are growing year after year. This year we have total participation of more than 1,000 students. So a big round of applause for, and I think this number is bigger than the science exhibition that and this number is much bigger than even the science exhibition which is organized by the education department for the entire P-board. Right? So a big round of applause to all of you. And also I would like to give credit for this entire arrangement and everything that has been done. It is not by me. As always happened, being a school leader, all credit
goes to the school leader for any event which is successful. But it is not the case. I am only the face of the school. But the actual team who has worked very hard for this particular program to be successful is very first Clifford sir, the leader. Maybe clap for him. Okay. Along with him, Sabha Miss, Palak Miss, Gulshan. Okay, you may clap for them as well. And all our coordinators. Okay, there is Oren Miss, Madan Miss, Pradhana Miss, and of course all the teachers and the non-teaching staff who worked very hard. Even till yesterday night, late night we were working. Again, we are arranging everything which you see today. And also I would like to thank all the co-sponsors, whether it is Raj Academy, whether it is MGS or whether it is PS Academy, for supporting us for this particular program. And let the show begin now. Yeah? So congratulations, and let's see who is the winner. Yeah? Okay, come. Hey. Hey. May we request you all to please look up. तो ये सेमीफाइनल इन का पहला मैच होगा, ठीक है। इसमें से जो हारेगा ना वो इसके साथ खेलेगा और जो जीतेगा डायरेक्ट फाइनल में जाएगा, ठीक है। ओके, फैजुल गुरुकुल, ओके, एंड सोहेल, उत्कर्ष सोहेल, ओके। So these two will play of under 12 girls. Okay, दो चुके। ओपन कर दो, देखिए इसका क्या है। ओके, ओके, सभा दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस्टिवल। आज मालवनी एमएलजी कॉलोनी गुरुकुल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में यहाँ पर जोश सीरीज शुरू हो चुकी है। जोश 4.0 चौथा साल है जोश सीरीज का, जिसमें कैरम बोर्ड, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल ये सब वगैरह वगैरह रहेंगे। लेकिन आज जो है कैरम और चेस का है, जिसमें कई स्कूल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं फरीद सर से। फरीद सर, आज जो जोश सीरीज चल रहा है 4.0, कितने स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है और क्या क्या इवेंट्स हो गया? सबसे पहले तो खबर फेस टू फेस का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस न्यूज को कवर किया। जोश 4.0 जो है ये हमारा चौथा साल है और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि मालवनी और मालवनी के बाहर के भी जो स्कूल है उनके बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो लोग अपना स्पोर्ट्स का जो हुनर है दिखा सकें। अभी इस साल मुझे बताने में खुशी हो रही है कि 30 से ज़्यादा स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें न कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल बल्कि इवन गवर्नमेंट स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे पास एमपीएस जन कल्याण, एमपीएस प्रतीक्षा नगर जैसे बीएमसी स्कूल्स भी हैं और इसके अलावा मालवनी है, चारकोप है, पठानवाड़ी है, ये सारे पॉकेट्स के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो जैसे हम लोग 4 इवेंट रख रहे हैं, जिसमें चेस है, कैरम है, क्रिकेट है और फुटबॉल है। इसमें जैसे क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो अभी 43 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और फुटबॉल में 20 से ज़्यादा टीम्स हैं और सारे मिला के जो पार्टिसिपेंट्स है वो 1000 से ज़्यादा है। क्या मकसद था जिसको लेकर आपने जोश की सीरीज स्टार्ट की? 2 बेसिक रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो स्लम में काम करने वाले जो स्कूल्स हैं हमारी तरह, तो हमारे पास में रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है। जैसे हमारे पास खुद के ग्रांट्स नहीं है या खुद के इक्विपमेंट्स नहीं है, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी अगर आप में जोश है तो आप बच्चों के लिए सारी सुविधा दे सकते हैं। तो इसके लिए जोश एक माध्यम है
जिससे हम बाकी सारे स्कूल को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स जरूर दीजिए। ये एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि जैसे पता है कि मालूम जैसे जो इस्लाम पॉकेट है या और भी कोई भी इस्लाम पॉकेट मुंबई का आप ले लेंगे तो यहाँ पर एडिक्शन ड्रग का हो या किसी और नशे का हो, ये बहुत ही आम बात है। तो हम अपने बच्चों को उसमें से कैसे बचाएं? तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स उसका एक सही जवाब है, एक सही सोल्यूशन है, क्योंकि बच्चा जब स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखने के लिए आ जाएगा। तो इस मकसद से हमने जो सीरीज को शुरू किया है। जैसे बताया था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम नशे को बंद नहीं कर सकते तो कम से कम नशे से दूर रहे। फरीद सर, जैसे आपने बताया कि मैदान की भी कमी है, तो इसके ऊपर कोई पहल क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर मैदान है लेकिन इसको प्राइवेट किया जा रहा है, तो मैदान तो बहुत जरूरी है। इतने बड़े आबादी का मालवे में इतनी बड़ी आबादी है, तो मैदान के लिए तो कदम उठाना चाहिए हम लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मैदानों के लिए लड़ने के लिए जैसे हमारे फिरोज सर है, उन्होंने सबसे पहले महाड़ा में जो वंदे मातरम ग्राउंड है उसको क्लियर कराने के लिए बहुत मेहनत की। महाड़ा से बहुत फाइट हुई और उसके बाद में आज आप देख रहे हैं कि मैदान बच्चों के लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट दूर दूर के बच्चे भी वहीं पे जाकर प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा अभी 8 नंबर का जो पुलिस फेडरेशन का जो ग्राउंड का मसला था, उसमें भी फिरोज सर ने पहल करके वो पार्टी वगैरह का कोई रिस्ट्रिक्शन ना रखते हुए उन्होंने सब लोगों को एक साथ लाया और उसके लिए भी फाइट की। तो ऐसे नहीं कि काम नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो लोग मालूम के ग्रोथ के लिए सिंसियर हैं, ईमानदारी से काम करें, ये लोग आवाज उठा ही रहे हैं। और ऑफकोर्स एक स्कूल ओनर होने के नाते मैं सारे मेरे जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राउंड को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से हम मालूमी का नाम आगे रोशन कर सकते हैं। जैसे आपने स्कूल बताया कि यहाँ पे स्कूल बंद वाली जो मैदान आपने बताया जो स्कूल का अलाउड होगा वो बंद हो जाएगा, और जो भी 8 नंबर का वो भी एक पेड मैदान रहेगा, वहाँ पे पैसा दो और खेलो, तो किस तरह से अफोर्ड करेंगे मालूम बच्चे? नहीं, मेरे ख्याल से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की कैपेसिटी या पेरेंट की कैपेसिटी इतनी है कि हम पैसा दे करके कोई टर्फ में जाके खेल सकें। तो हमें तो भी ग्राउंड चाहिए और वो भी फ्री में चाहिए। तो इसके लिए जो भी लड़ना पड़े हम सारे स्कूल वाले मिल करके हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद सर। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सीरीज को लेकर यहाँ के यंग जनरेशन? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा सारे प्रिंसिपल्स को जिन्होंने हमारे पे भरोसा किया और अपने बच्चों को इस टूर्नामेंट के लिए भेजा। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जब एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं तभी बच्चों को हम लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि सारे स्कूल वालों ने एक साथ आना चाहिए और इस तरीके के सारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने बात करते हैं।